وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ خواجہ آصف صاحب، پولیس لائنز حساس ترین علاقوں میں یہ جگہ آتی ہے، آج اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 18 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کوئی جو ہے وہ نمبر جو ہے فرم اپ نہیں ہوا، اللہ نہ کرے کوئی مزید جو ہے وہ شہادتیں ہوں، لیکن شدید زخمی لوگ ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ میں نمبر اس وقت کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن جو لاسٹ میں میرا نمبر تھا، میرے پاس جو نمبر تھا وہ 18 لوگ شدید زخمی تھے اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ جو بلاسٹ سے جو مسجد کا چھت جو ہے اس نے کولیپس کر گیا ہے، اور جو دہشت گرد تھا وہ اگلی صف میں جو ہے نماز کی جماعت کی جو ہے اس میں کھڑا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دین کا کس طرح جو ہے اس کا کس طرح اس کا چہرہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے کہ نماز میں جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں، اللہ کے حضور میں آپ کھڑے ہیں اور ساتھ آپ جو ہے قتل عام کر رہے ہیں اور خون بہا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بنا رہے ہیں جو سجدہ ریز ہیں اللہ کے آگے، ان کا خون بہا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کا کیا تعلق ہے دین سے؟ یہ اب ججمنٹ جو ہے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں یا عوام پہ چھوڑتا ہوں یا ساری قوم پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا دین سے کیا تعلق ہے جو اس وقت جو واقعہ جو ہوا ہے۔ اور ساتھ اس وقت اوور ویلم ہو گئے ہوئے ہاسپٹل جو ہے، اتنی زیادہ زخمی جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور پولیس کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، بلکہ جو اپنی جو ان کی دھمکیاں ہیں، وارننگز ہیں، اس میں پولیس انہوں نے سر فہرست رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی چند 2-4 ہفتے پہلے جو واقعہ ہوا تھا سی ٹی ڈی میں، وہاں بھی پولیس ٹارگٹ کی گئی تھی، اور بنو میں جو ہے جو واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ اس میں دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اس مشینری کو جس نے پہلے اس پہ قابو پایا تھا دہشت گردی پہ آج سے 8-10 سال قبل جو ہے نیکٹا کو اور سیکورٹی فورسز کو، ہماری سویلین سیکورٹی فورسز کو، ہماری افواج کو جو ہے اس پہ یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارا صوبہ جو ہے، ہمارے ملک کا ایک حصہ جو ہے وہ تقریباً اس دہشت گردی کی وجہ سے پورا نہیں تو بہت حد تک حالت جنگ میں ہے، اور ہمیں سب نے مل کے جو ہے نا یہ جو پچھلے 8-10 سال میں جو وہاں پہ ڈیٹیریشن ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں، خصوصاً جب ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی افغان کے جو نئی حکومت کے بعد جو ہے ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اس سے دوبارہ جو ہے اور حکومت آگاہ ہے اس بات سے، اور اس سلسلے میں جو ہے نا وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور بالکل لا اینڈ آرڈر جو ہے کے پی میں ریسٹور کیا جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب، ابھی تک کی جو انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے وہ بھی اگر آپ ہم سے شیئر کریں، سیکیورٹی حکام کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے، اور حساس ترین علاقہ ہے جس طرح ہمارے نمائندگان بھی بتا رہے ہیں، سی سی پی او، ایس ایس پی پشاور، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی سارے آفیسز وہاں پہ، تو سیکیورٹی تھریٹ تھا اس سے متعلق، اور آپ بھی اس کو سیکیورٹی لیب سمجھتے ہیں؟ 2-3-4 دن پہلے اس کے متعلق کوئی انڈیکیشنز آتی ہیں، دیکھیں یہ جو اس قسم کی انڈیکیشنز آتی رہتی ہیں کہ فلاں کو خطرہ ہے، افراد کو یا فرد کو یا ادارے کو خطرہ ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ کی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک ایسی جگہ ہے، ٹھیک ہے پولیس لائن کے اندر ہے، لیکن وہاں پہ لوگ جو آئے ہوتے ہیں، سائل وغیرہ بھی آئے ہوتے ہیں، یا کچھ سویلین جو دوسرے لوگ عام شہری بھی جو ہیں وہ بھی ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کا وقت تھا تو اس میں نماز پہ تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا کہ بھئی آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، یا مسجد جو ہے وہ اس میں سیکورٹی کا سچویشن ہے۔ نماز کا ایک سلسلہ ہے جو اس میں تو اللہ کے گھر میں تو سب کو ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن جب اس چیز کے اس اسپرٹ کو یا اس جذبے کو اس طرح ایکسپلائٹ کیا جائے، اس
उसमें खून बहाया जाए, नाहक खून बहाया जाए, नमाजियों का खून बहाया जाए, इबादत और सजदा रेज जो लोग हुए हैं उनका खून बहाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मज़हब का जो है ना चेहरा जो है इस तरह मस्ख होता है। और क्या दुनिया सोचेगी कि ये अपनी आबाद गाँव में दहशत गर्दी करते हैं। हालांकि जो दहशत गर्दी का शिकार तो मुसलमान ममालिक हुए हैं, लेकिन इस किस्म के वाक़यात जो है ना हमारे दीन को, हमारी इस्लामी दुनिया को उनके बायस बदनामी का बायस बनते हैं। अच्छा ख्वाजा आसिफ साहब, ये पिछले कोई 2 महीने के लगभग टाइम हुआ है कि छोटे छोटे वाक़यात हम देख रहे हैं। कहीं चेक पोस्ट को निशाना बनाया जाता है, कहीं खबर आती है कि 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो इसका निशाना बने हैं, कहीं 2 पुलिस एहलकार। तो क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं थी और अब की बार तो सिविलियंस को निशाना बनाया गया? नहीं, देखें अभी भी पुलिस के देखें निशाना तो पुलिस ही हुई ना, वहाँ पे सिविलियन जो थे वो नमाजी थे जो निशाना बने या जो टारगेट बने, जो शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, वो तो नमाजी थे। वहाँ पे नमाज जब होती है तो वहाँ पे कोई ये तो तफरीक नहीं होती ना कि ये पुलिस वाले हैं या ये सिविलियन है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोताही है, लेकिन डेफिनेटली पिछले चंद सालों के अंदर जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, आप वो CTD वाला वाक़या जो 2-3 हफ्ते पहले, वो भी एक इस बात की गवाही थी कि किस तरह वहाँ पे कोलैप्स हुआ है, या जो पेनिट्रेशन की है ओवर लास्ट लेट्स से 2 साल में 1.5 साल में जो बॉर्डर से अफगानिस्तान से जो लोग वापस आए हैं रीसेटल। लेकिन एक चीज़ का बहुत खुशाइंद है कि सिविलियन पॉपुलेशन जो है ना, आम शहरी जो है इसके खिलाफ जो है बाहर निकले हैं, चाहे वो सवात है या बाजोड़ है, वाना है, वहाँ पे लोग बाहर निकले हैं। तो एक अवेकनिंग ज़रूर है आवाम के अंदर कि वो इस चीज़ को जो है खुद भी कन्फ्रंट करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, क्या आपके इल्म में है कि किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है? अभी तक तो मैं 15-20 मिनट या आधा घंटे पहले तक तो अभी तक कबूल नहीं हुई थी। अब ना हो गई हो, क्योंकि मैं इस वक्त अपने ऑफिस में नहीं हूँ और मैं ये 2-3 पिछले बीपर ही दिए हैं पिछले 15-20 मिनट में। इसमें को लाजमी तो भाई कोई ना कोई फरीक जो है ज़रूर कबूल करेगा, लेकिन अब वक्त है कि हम एक फिर उसी तरह जिस तरह आज से 8-10 साल कबल जो है हमने जंग लड़ी थी 2013 में या 12 में या 11 में 10 में सवात से लेके उसके बाद जो है दरबयाज हुआ, ये सारे उसी तरह हमें कमर बांध के जो है इसका मुकाबला करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो जंग हमने लड़ी थी उसमें क्या आप समझते हैं कबाहत है, उसके अंदर वक्फा क्यों आया? देखें, एक तो अमन जो है वो हो गया, दहशतगर्दी का कलाकमा हो गया, कराची में अमन हो गया, सवात में अमन हो गया, नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो वापस आ गई। तो जब ये इस सिलसिले में लेकिन इस दौरान जो है बड़ी तब्दीली ये आई कि अफ़गानिस्तान में जंग बंद हो गई, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ गई, नेटो वहाँ से रुखसत हो गई। तो उसके बाद जो है ये लोग जो है जो ये पाकिस्तान की जो टेरिटरी में उसमें वापस आए हैं और तादाद में वापस आए हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टेबलाइजेशन हुई है। जी ख्वाजा साहब, जवाब दीजिए सवाल। बात है जी, बहुत जितना भी दुख का इजहार किया जाए कम है, कीमती जाने ज़ाया हुई हैं और पुलिस एहलकार जो हैं वो निशाना बनाया गया है। ये इसको क्या कहेंगे, इस चीज़ को जो है जो इस तरह बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाता है। जो आपने जो बात की है ना, जो पॉलिसी की बात की है, देखें हम तो अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं और जब ये मुआहदा हुआ दोहा में तो ये चीज़ सेटल हुई कि उनकी सरजमीन जो है, अफगानिस्तान की सरजमीन जो है किसी भी मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान उसके लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन शहादतें मिलती हैं कि उन्हीं बलूचिस्तान में भी और यहाँ भी उनकी सरजमीन जो है ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में जो है अमन तबाह करने के लिए। एक तो बात ये है
लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि काबुल और इस्लामाबाद मिल के जो है इस मैनेस का जो है या इस पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दी का जो है कलाकमा करें। इसमें अफगानिस्तान का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, और बल्कि इस खत्ते में तमाम ममालिक जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, लाइक ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, साउथ में, ये सब जो है अदरवाइज ये सारी इसमें आग की लपेट में सब लोग आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अफगानिस्तान के साथ जो है हम फौरी राब्ता करेंगे कि ये इन लोगों को जो उनके साथ इनके हलीफ रहे हुए हैं उनको जो है कंट्रोल करें और ऑल एंड डे इनकी किसी ने आपके पास रिपोर्ट है, किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है और हम किसी की अभी निशानदेही भी उस तरीके से हम पिन पॉइंट किसी को नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे भारत का हमने देखा कि हिस्टोरिकली वो इन्फिल्ट्रेट करता है पाकिस्तान में, उसके शवाहिद भी है, फिर अफ़गानिस्तान के ज़रिए भी, वो कि हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है अफ़गानिस्तान की उसमें, लेकिन वो कुछ लोगों को ज़ाहिर है फंडिंग करके वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तो ये भारत से भी कुछ इस तरीके की ख़बरें आ रही हैं गुज़श्ता दिनों में कि कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश कर सकता है भारत। देखें, भारत तो आप देखें अभी रिसेंटली जो बरतानिया से रिपोर्ट्स जो है उनकी जो है वो जो डी क्लासिफाई हुई हैं उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है गुजरात में जो 2,500-3 हज़ार जो शहीद हुए थे वहाँ पे मुसलमान, और नरेंद्र मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि उसकी सुपरविजन में जो है। तो जो शख्स जो है उस खून बहाने की वजह से सियासत में प्रोमिनेंट हुआ, मुमताज़ हुआ, वो आपका ख्याल है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पाकिस्तान के अंदर हम तबाह करने की, तो वो अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी अंदरूनी जो हालात हैं उनको, जो इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे, एक कौम बन के, एक मुल्क बन के, एक मुट्ठी बन के जो है हमें सोचना चाहिए कि हम किधर ले जा रहे हैं अपने मुल्क को, और किस तरह अंदरूनी हमारा खलफशार जो है वो कितना तबाहकुन साबित हो रहा है आम शहरियों के लिए, चाहे वो केपी में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में और पंजाब में हो। जी अच्छा, खालिद साहब, हमें एक मुश्किल सूरत हाल का इस वक्त सामना है, और वो इसलिए कि अभी इन वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ KPK में केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट का ज़ाहिर काम इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही होता है, और ये सारे मामला सिक्योरिटी के और इस तरह वो पॉलिसी मेकिंग तो वो नहीं कर पाती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा ऐसे वक्त में केयर टेकर गवर्नमेंट का होना और उसको डील करना इन चीज़ों से। नहीं, वफाकी हुकूमत अपना पूरा रोल अदा करेगी, अपनी जिम्मेदारी निभाएगी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, ठीक है आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनका मेन मकसद जो है इंतखाबात कराना होता है, लेकिन ये तो नहीं है कि वो हाथ तो नहीं उठा लेते, बिल्कुल वो भी इस बात का कॉग्निजेंट है कि वो अपना जो अमन अमान जो है सूबों में उन्होंने मेंटेन रखना है। बिल्कुल जो है वो इलेक्शन के अलावा जो है ये वो उससे कुछ जो है कोई अब्सॉल्व तो नहीं हो जाते ना उस जिम्मेदारी से। जी अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में जिस तरीके से सियासत तो बिल्कुल अलग है ज़ाहिर है सिक्योरिटी मामला से, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है। तो अभी सियासी तौर पर जो एक तरीके से इस मुल्क में एक तूफ़ान सा आया हुआ है और सब बयानियों की जंग चल रही है, लोगों में एक इंतशार भी है, फिर मईशत भी है, तो ऐसी सूरत हाल में तो ज़्यादा मुश्किल और मज़ीद काम हो जाता है वफाकी हुकूमत का। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, 100% इत्तफाक करता हूँ कि इस तरह जो इक़्तिदार की हवस जो है, जब लोगों का दिमागी तवाज़ुन ही ख़राब कर दे, किसी चीज़ की भी हवस जो है, या ख्वाहिशात का जो एक अंबार या सैलाब जो है, इंसान का ज़हनी तवाज़ुन जो है कायम नहीं रहता। अगर 3-4 साल इक़्तिदार रहा है और उसके बाद इक़्तिदार की जो है वो एक नशा जो है वो नहीं उतर रहा, तो फिर क्या किया जाए? उसमें जो है इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और एक कुव्वत जो है साबिक़ वज़ीर आज़म की जो है वो क़यादत में जो है वो डिस्टेबलाइज इतना कर रहे हैं कि वो यहाँ पे खाना जंगी करना चाहते हैं। जिस तरह का कल उनका बयान आया है जरदारी साहब के मुतल्लक, और वो तो चाहते हैं कि ये मुल्क जो है उनकी सरबराही में, बार बार वो इस बात का कह रहे हैं कि उनकी सरबराही में ही सब कुछ हो सकता है। अगर वो सरबराह ना रहें, वो वज़ीर आज़म ना रहें, तो मुल्क जो है वो तो उसका वजूद ही जो है ख़तरे में पड़ जाता है। तो ये उन्होंने अपनी मुल्क की जो है
सालमियत जो है, मुल्क का वजूद जो है अपने इक़्तिदार के साथ मशरूत कर दिया हुआ है। इसका क्या इलाज किया जा सकता है? अच्छा काजी साहब, ये भी कहिएगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम फ्रंटलाइन स्टेट रहे हैं और जितना हमारा नुकसान हुआ है दुनिया के अमन के लिए कोशिशें करते हुए, क्या दुनिया रियलाइज़ कर रही है उस तरीके से? हमें अभी सैलाब से मुताल्लिक भी हमने दुनिया से अपील की, मईशत से मुताल्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। फिर हमारे जो तनाज़ात इंडिया के साथ कश्मीर का तनाज़ा है उस पर भी सरफ नज़र किया जा रहा है। तो ये आप क्या समझते हैं, ये किस तरफ जाएगा मामला? देखिए, मैं समझता हूँ कि सैलाब के ऊपर जो है किसी हद तक जो है लेटेस्ट जो जिनीवा में जो हुआ उसमें एक आया है, रिस्पांस जो है आया है, और उस रिस्पांस में जो है बहुत से लोगों ने, हमारे दोस्त ममालिक ने और बैनुल-अक़वामी कुव्वतों ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन कमिंग बैक टू दहशतगर्दी, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि जब ये जंग शुरू हुई और अफगानिस्तान में रूसी जो है मुदाखलत हुई, और उससे पहले जो वहाँ पे एक बदअमनी या खलफशार या इंस्टेबिलिटी थी, हम जब उसका पार्ट बने, आज तक जो है आज 40 साल हो चले हैं। 70 की दहाई में ये सिलसिला शुरू हुआ, हम उससे अपना दामन नहीं छुड़ा सके। हमारे दामन को जो आग लगी 70 या 80 की दहाई में, आज भी नहीं उसको बुझा सके। ये माजी की गलतियाँ, उस वक़्त एक डिक्टेटरशिप थी, उन्होंने अमेरिका की खुशनुदी के लिए जो है एक जहाद जो है रूस के खिलाफ शुरू कर दिया। कैसा जहाद और क्या जंग थी, हेजमनी की, इंटरनेशनल हेजमनी की, 2 सुपर पावर्स में हम उसके अंदर जो है एक मोरा बन गए। उसके बाद फिर 9/11 के बाद फिर हमने अपनी जो है सॉवरेंटी जो है, अपनी खुद मुख्तारी जो है बेची कि हमें 4 पैसे मिल जाएं। जब मुल्क जो है इस किस्म की सौदे करते हैं अपनी खुद मुख्तारी का, तो फिर वो चीज़ें जो हैं, जो बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं, वो बीमारियाँ जाती नहीं हैं। फिर वो तो एक इत्तेहाद के साथ और यकजहती के साथ और खुददारी के साथ ही जो है उसका मुकाबला किया जा सकता है। जो 80 की दहाई में और इस सदी की जो पहली दहाई में जो हमने अपनी खुद मुख्तारी बेची और हम पौन बने, एक मोरा बने, एक जो बसात है, बैनुल-अक़वामी बसात है, उसमें हम शतरंज का एक मोरा बन के